Hello, Assalamu alaikum, and welcome back to Kickoff 101. For today's session, we will be covering ABC of marketing. As you all know, the basis what marketing is basically how you deliver your product or service to the targeted customers. The basic definition is marketing is the process by which startups identify, create, provide, capture and sustain value for their customers. अब इसमें important चीज आपने understand क्या करनी है, value for the customers क्या होती है, ठीक है? Value is basically the benefit that your product or service provides to the targeted customers. It is very important कि आप understand करें value क्या है और अपने target customers तक वो value provide करें. Okay, so marketing analysis. Marketing analysis में the 5 main things that we need to cover are the 5 C's. It focuses on 5 basic areas, the 5 C's. First is customer needs. Customer needs is what? Customer needs is जो customer है आपका market में, what do they require of you? Second is your company or startup skills, the skills that you are providing to your target customers. Then there's competition, collaborators and context. ठीक है, ये चीजें हम सारी next slide में cover करेंगे in a little detail. First and foremost, customer needs. What are the customer needs? आपके customers को आप कौन सी चीज provide कर रहे हैं? What are the specific market needs that the business seeks to satisfy or what you are offering? Basically, ऐसी कौन सी need है customer की जो आपके product या service से आपके customers को मिल रही है? What you need to understand now is इसमें दो basic चीजें होती हैं, the purchasing process and the decision making process. Now, what is the purchasing process? Purchasing process is basically an in-depth analysis of customer usage patterns and buying decisions, which is very necessary for effective marketing. अब इसमें आपने दो चीजें understand करनी है कि आपके customer का pattern का है through which they use the product or the service और उनके buying decision किस चीज पे base होते हैं. अब इस पूरी चीज में फॉर इफेक्टिव मार्केटिंग देयर आर रोल्स. इनिशिएटर का रोल होता है, इसमें डिसाइडर का रोल होता है, इन्फ्लुएंसर का रोल होता है और परचेजर का रोल होता है और फिर यूजर का भी रोल होता है. नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, फॉर इंस्टेंस अगर हम एग्जांपल लेते हैं, आपका एक कंपनी में आप बैठे हुए हैं और आपने एक डेस्कटॉप परचेज करना है. अब नाउ द इशू इज जो यूजर होता है प्रोडक्ट या सर्विस का, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन हु इज परचेजिंग द प्रोडक्ट. सो इन दिस एग्जाम्पल आपने एक डेस्कटॉप परचेज करना है, तो आपका परचेज कौन करेगा? सीईओ, बिकॉज वो पैसे प्रोवाइड करे उस प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, ठीक है. बट जो यूज कर रहा है प्रोडक्ट वो कौन सा होगा? एम्प्लॉय. So obviously the person who is using the product is very different to the person who's purchasing the product, ठीक है. और obviously decision base होगा IT डिपार्टमेंट का, because the IT डिपार्टमेंट understands कि उन्होंने कौन से criterias को in mind रखना है while making the decision. So it's very essential कि आप understand करें कि आपका purchasing process क्या है, which if roles or people are involved when the purchasing process is taking place, ठीक है. After you understand this, and this is very very essential, आप please इस बात को समझें, it's very essential that you know the purchasing process so that you can cater to the need of your customer. Second चीज इसमें जो बहुत important है that you need to understand is the decision making process. Now what is the decision making process? Decision making process is whether your customers search for information before making the purchase and if so in what manner, ठीक है. So what happens is mostly आप जब product या service purchase करते हैं उसमें आप decision either प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पहले लोगों से गेन करते हैं, अपना कोई सर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, फिर आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं. कभी कभार ये भी होता है कि आप खुद मार्केट जाके प्रोडक्ट या सर्विस देखते हैं फिर आप परचेज करते हैं. इन अ लॉट ऑफ इंस्टेंसेस ये भी होते हैं कि आपके जो अल्टरनेटिव्स हैं आप उससे भी इवेल्युएट करते हैं कि आपका प्रोडक्ट कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी सर्विस कौन सी नीड्स केटर कर रही है और आप उनके अल्टरनेटिव से उनको मैच करते हैं, फिर आप परचेज करते हैं. सो इट्स वेरी एसेंशियल फॉर यू टू अंडरस्टैंड both these processes, the purchasing process, the people involved in the purchasing process and the decision making process. When you understand this, you will understand कि आपकी customer की need क्या है, what the customer requires of you. Moving forward, we have the company skills. Now, what is company skills? Company skills are what special competence does your startup have to meet the customer needs. अब इसमें competence क्या होती है? Competence is basically the ability जिससे आप खुद कुछ efficiently और successfully अपने customers तक कुछ पहुंचाते हैं. So in this process you need to understand कि आपकी वो कौन सी competence है आपके product या startup की जो customers ढूंढ रहे हैं. The marketing analysis should also be include an honest assessment of your startup's strengths and weaknesses. So आपको अपनी कंपनी का एनालिसिस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अंडरस्टैंड करें कि आपकी अपने प्रोडक्ट सर्विस या स्टार्टअप की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं.
Once you understand that, then you can successfully deliver your product or service to the required customers. Moving forward, we have the third C, which is the competition. Obviously, जो आप definition competition की देखते हैं, competition revolves around के market में आपके कौन से competitors हैं. Who competes with your startup in meeting those needs? Obviously, जब आप market में आते हैं, there are obviously so many other alternatives जो आपका similar या same product provide कर रहे होते हैं. So it's very important for you to understand what all those competitors are that are meeting your startup needs. Competitors not only include those in the market, it's very essential. आप प्लीज फोकस करिए इस चीज पे. इट्स ऑल्सो वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड कि कंपेटिटर्स खाली वो नहीं होते जो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, बट वो सारे लोग होते हैं जो फ्यूचर में भी आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के कंपेटिटर्स हो सकते हैं. It could be in the form of new entrants to the market or substitute offerings. So either वो new entrants की form में हो सकते हैं या वो substitutes offer कर रहे होते हैं, but obviously वो customer की same need को cater कर रहे होते हैं. In order to understand that, you need to assess the strengths and weaknesses of these competitors to better determine how to differentiate your startup in the minds of the consumers. Because it's very essential. जब एक consumer एक product खरीद रहा होता है जाके, वो खाली आपके product को नहीं देखता. So it's important for you to know कि आपके competitors या substitutes कौन सी needs को cater कर रहे हैं. Once you understand those needs, you can better make an analysis कि आपका product या service बाकी से different कैसे है before you start marketing it. Moving forward, we have collaborators. What are collaborators? Collaborators are basically upstream suppliers and downstream distributors. Basically, जो आपको supply कर रहे होते हैं और आपके लिए आपका product या service distribute कर रहे होते हैं. Marketing analysis को understand करने के लिए आपको इन चीज़ों में की understanding भी बहुत essential होती है कि आपके suppliers कौन है, secondly आपके downstream distributors कौन है जो आपका product को distribute करेंगे आगे जाके. So you need to develop a strategy to gain the support of industry collaborators to gain thorough knowledge of the collaborators in order to understand कि आपका cost structure क्या होगा, margin expectations क्या होंगी, आपकी relationship क्या होगी. So before you make the marketing analysis, you need to understand one, suppliers कौन से आपके, distributors कौन से हैं. You need to understand these कि आपकी इंडस्ट्री में जो भी suppliers और distributors हैं आप उनको understand करें so that you can make a better decision on the cost structures, the margin expectations and relationships with your competing firms. Moving further, we have context. What is context now? Context is basically आपके startup या service का basic idea क्या है. Are there cultural, technical or legal factors that limit your startup's decisions? For instance, अगर आप पाकिस्तान में एक product या service launch करें, you need to have an idea before launching your product or service कि कोई cultural issues तो नहीं जिसकी वजह से आपका product launch ही ना हो सके. Are there any technical issues जो आपका further down issue create कर सकते हैं और आपका product या service को launch होने से रोक सकते हैं? और are there any legal factors जो आपके startup को launch होने से रोक सकते हैं? ये सारी चीजें include होती हैं आपके macroeconomic factors में. So before you market or launch your product and service, you need to understand कि कोई political, regulatory issues तो नहीं है, कोई economic factors तो नहीं है, या कोई social और cultural issues तो नहीं है जिसकी वजह से आपका product या service launch होने से रुक जाए. So now we've covered the 5 C's of marketing analysis. It's very essential for you to understand the 5 C's, which are the customer needs, company startup skills, competition, collaborators, and context. Also, if you have any questions, आप please comments में पूछ सकते हैं, आप chat में पूछ सकते हैं. I will get back to you after the session. Moving further. This is basically the situation analysis जिसमें हम 5 C's cover करते हैं. Once the situation analysis is completed and the 5 C's are currently studied and thoroughly done, we need to define our customer segments. अब आपकी target market में different segments होते हैं. First and foremost, what you need to do is you need to understand आपके segments कौन से हैं market में. Once you've understood the segments in the market, then you can determine which segments to target. ठीक है. Once अगर आपने अपनी target market ढूंढ ली है, उसके बाद you need to determine how to position your company in the minds of the customers. Moving further, we will discuss all of these in detail, but it's very important कि आप इस बात को समझें. आपके customer segments, आपकी target market दोनों बहुत different चीजें होती है. So in order to understand your target market, you need to segment your customers. ठीक है. Once you've done that, फिर ही आप अपना product या service उनके दिमाग में position कर सकते हैं. Now what we have is segmentation.
Segmentation. Market segments are groups of potential customers who share certain traits. चाहिए फॉर इंस्टेंस आप पाकिस्तान में या लाहौर में एक प्रोडक्ट लॉन्च करें, ऑब्वियसली आपके कस्टमर्स डिफरेंट सेगमेंट से बिलोंग करते हैं. अब सेगमेंट्स आप डिवाइड करते हैं ऑन डिफरेंट बेसिस. अब वो कॉमनली यूज बेसिस क्या है? डेमोग्राफिक. फॉर इंस्टेंस आपने अपना प्रोडक्ट और सर्विस लॉन्च कर दिए, आप उसमें अपनी टारगेट मार्केट ढूंढ रहे हैं. इन ऑर्डर टू फाइंड द टारगेट मार्केट आपको अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को सेगमेंट करना होता है. How do you segment that now? First and foremost is demographic. Demographic की basic definition है people who fall under the same age, fall under the same income bracket, fall under the same gender and fall under the same occupation. ठीक है. अब जरूरी नहीं है कि आपका सेगमेंट इन सब चीजों को कवर करे, बट आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप अंडरस्टैंड करें और डिवाइड करें कि आपके कस्टमर्स हैं कौन. सो आप किस बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं? डेमोग्राफिक के. डेमोग्राफिक के बेस पे एज, इनकम, जेंडर और ऑक्यूपेशन के बेसिस पे आप डिवाइड कर लेंगे अपने सेगमेंट को. सेकंड चीज दैट इंक्लूड्स इन द सेगमेंटेशन है, तो थोड़ा ब्रॉड हो जाता है. जियोग्राफिक. जियोग्राफिक में बेसिकली आ जाता है नेशन, रीजन. कौन से नेशन में आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट और सर्विस, या आप कौन से रीजन में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट और सर्विस. उसके बाद आप अर्बन एरिया में करें या रूरल एरिया में करें. सही है. So you need to understand the demographic first and then the geographic location, because obviously इन चीजों पे cater करेगा कि आपके कस्टमर का माइंडसेट क्या है. ठीक है. बिकॉज फॉर इंस्टेंस डेमोग्राफिक अगर ले लें, ठीक है, तो एक एज का इंसान और दूसरे किसी और एज ब्रैकेट का इंसान का दिमाग एक बहुत डिफरेंट एंगल पे चलता है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी टारगेट मार्केट है कौन सी, एंड देन यू डिवाइड देम बेस्ड ऑन देयर सेगमेंट्स. Demographic, geographic, and last is the lifestyle. Lifestyle is basically, for example, single versus family oriented. अगर एक सिंगल इंसान रह रहा है, उसका the way his mind frame works will be very different to a person who's living in a joint family. So in order to understand and get inside the brain of your target customers, it's very important कि आप उन्हें segment करें और understand करें उनके brain को कि उनकी need क्या है. ठीक है. So this is what segmentation is. सेगमेंटेशन के बाद आप टारगेट करते हैं. नाउ व्हाट इज योर टारगेट मार्केट? वंस यू सेगमेंटेड योर कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स, यू स्टार्ट विद योर टारगेट मार्केट. अब टारगेट मार्केट को कंसीडर करने के लिए देयर आर फ्यू डिटरमिनेंट्स, फैक्टर्स टू कंसीडर व्हेन डिटरमिनिंग व्हिच सेगमेंट्स टू टारगेट. अब ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट और सर्विस सारे सेगमेंट्स को नहीं टारगेट करेगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो आप उसमें से भी लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं और टारगेट करते हैं अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को. Now, the factors that you need to consider are the comparative strengths and weaknesses of your offering compared to your competition. What does this mean? This means कि आपका जो product या service है उसकी क्या strengths और weaknesses है, आप क्या ऑफर कर रहे हैं अपने potential customers को, and then you make a comparison कि आपका जो competitor है उससे आपकी strengths और weaknesses कैसे differ करती हैं. सही है. So once you understand this, you can launch your product keeping in view कि आपका potential customer कौन है और आप बाकी लोगों से कैसे different है. Secondly is the overall goals and how the segments align with these goals. आपका अपना क्या गोल है? अगर आपने एक प्रोडक्ट और सर्विस लॉन्च किया, आपका ऐसा क्या गोल है जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता, और अपने टारगेट मार्केट तक आपने उस गोल को कैसे रीच करना है. ठीक है. उसके बाद आता है द रिसोर्सेज नेसेसरी टू प्रॉपरली सर्व द सेगमेंट्स. नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अंडरस्टैंड करें कि आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं. ठीक है. आपने अपने सेगमेंट्स कर लिया, आपने अपनी टारगेट मार्केट कर ली, अगर आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है कि आप उस टारगेट पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचे, तो आप अपने प्रोडक्ट को उनके पास लेकर जा ही नहीं सकते. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अंडरस्टैंड करें आपके पास इवन रिसोर्सेज हैं या नहीं है इन ऑर्डर टू गेट टू योर कस्टमर्स. Fourth is the need and potential availability of collaborators to assist in reaching the segments. ऑब्वियसली एक प्रोडक्ट और सर्विस जब लॉन्च होता है मार्केट में, ठीक है, सो आप खाली सब कुछ नहीं कर सकते. जैसे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, कोलैबोरेटर्स क्या होते हैं? सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स. सो इन ऑर्डर टू गेट योर प्रोडक्ट और सर्विस टू योर पोटेंशियल कस्टमर्स, आपके पास अवेलेबल कोलैबोरेटर्स होने चाहिए ताकि आप अपना प्रोडक्ट एफिशिएंटली, आपकी सर्विस एफिशिएंटली आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स तक ले सकें. उसके बाद लाइकली फाइनेंशियल रिटर्न्स फ्रॉम सर्विंग द सेगमेंट्स. ठीक है. आपने अपने सेगमेंट्स कर लिए, आपके पास फाइनेंशियल एड भी है टू गेट टू देम, आपके पास कोलैबोरेटर्स भी हैं, आपके पास आपको गोल भी पता है आपने क्या है, आपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस भी डिटरमिन कर ली, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस हैं, आपके कंपेटिटिव की क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं. उसके बाद आपने ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि आपको अपना फाइनेंशियल रिटर्न क्या मिल रहा है. ऑब्वियसली आप इतना इन्वेस्ट करें एक चीज के अंदर, सो एट द एंड ऑफ द डे आपको अपना भी तो कोई फाइनेंशियल रिटर्न मिलना चाहिए ना. So you need to keep all these things in mind when you are making a target market. Moving forward, positioning.
बेसिक डेफिनेशन पोजिशनिंग की क्या होती है? Positioning is basically how you position your desired product or service in the minds of your potential customers. In easier words, for instance, अगर आप ले लें एक product है, for instance iPhone, वो potential customer के दिमाग में उसकी क्या image है, आपने ये create करनी है. This is how you position your product or service. How your startup will position itself in the marketplace. अब इसमें आपने एक चीज करनी होती है, positioning statement. What is a positioning statement? Positioning statement is a description of how your firm wishes to be viewed by your customers. It is how you want customers to think of your offering in relation to its competitors. Now हम एग्जांपल लेते हैं. आपने सेगमेंट कर लिया, आपने टारगेट कर लिया. Why do you do segmentation and target market? So that अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करो अपने कस्टमर के माइंड में कि वो प्रोडक्ट खरीदने जाए तो ही नोज कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो इन रीजंस की वजह से इट्स डिफरेंट फ्रॉम द कंपेटिटर्स. दैट इज व्हाई आई नीड दैट प्रोडक्ट. के ऑलरेडी बिफोर द परचेज आपके कस्टमर के दिमाग में पोजीशन होया हुआ आपका प्रोडक्ट और सर्विस. ठीक है. सो फार व्हाट वी हैव कवर्ड इज मार्केटिंग एनालिसिस, जिसमें हमने 5 C's कवर किए. All that you need to cover is to understand the marketing process. So आपने marketing analysis cover किया, उसमें आपने 5 C's को cover किया. उसके बाद आपने segment किया आपने divide किया अपने potential customers को groups में. उसके segment के बाद आपने अपने target की market कि आपने कौन सी market को target करना है. उसके बाद आपने क्या किया? Positioning कि आपके mind में customer आपके product को कैसे देख रहे हैं. Moving forward, the marketing mix. अब marketing mix में हमने 4 चीजें कवर करनी होती हैं. So we'll start off with the basic definition के marketing mix है क्या. Now what is a marketing mix? Marketing mix is made up of all the activities that are involved in the marketing program. Basically, these are all the activities that are used by a startup to accomplish its marketing strategy. ठीक है. In order to understand the marketing process, it's very essential कि आप अपने marketing mix को understand करें. Marketing mix क्या होते हैं? Activities होती हैं, वो सारी चीजें जो आप करते हैं अपनी एक marketing strategy बनाने के लिए. ठीक है. अब strategy जो आपकी होती है वो 4 चीजों पे base हुई होती है. ये 4 चीजें क्या होती हैं? आपका product क्या है? ठीक है. आपका प्रोडक्ट क्या, आपके चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होंगे, आप उसे प्रमोट कैसे करेंगे और उसे आप प्राइस कैसे करेंगे. नाउ हियर इट्स वेरी वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड मार्केटिंग मिक्स. बहुत दफा क्या होता है कि लोग डिसाइड कर लेते हैं हमारी सेगमेंटेशन, हमने सेगमेंट कैसे करना है, हमारी टारगेट मार्केट क्या है, हमारे कस्टमर्स डिफरेंट कैसे, हमारे ऑल्टरनेटिव से या हमारे कंपेटिटिव से, पर आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत वीक होती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग हो सो दैट आपका प्रोडक्ट और सर्विस आपके टारगेटेड कस्टमर्स तक पहुंच जाए. ओके, सो इसमें क्या 4 चीजें होती हैं? प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट या सर्विस क्या है, योर प्लेस, प्रमोशन एंड प्राइसिंग. वी विल कवर ऑल दीज in detail in the moving slides. Product क्या होता है? Basically, product is not simply an object or service that a business sells, but the entire value the customer gains from that purchase. अब आप एक चीज परचेज कर रहे हैं, ठीक है, सो वो सिर्फ आप एक प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे या आप सिर्फ एक सर्विस नहीं खरीद रहे, उसमें आप वो सारी वैल्यू कवर कर रहे हैं जो एक कस्टमर को मिलती है फ्रॉम अ परचेज. फॉर इंस्टेंस हम एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने एक नया फोन खरीदना है, ठीक है, आप मार्केट में जाते हैं, आप कहते हैं मैंने एप्पल का आईफोन खरीदना है, सो आप खाली प्रोडक्ट को तो नहीं देखते ना, आप उसके साथ देखते हैं उसमें प्रोडक्ट कैसा है, हाउ इट लुक्स, वो फीचर्स क्या ऑफर करे, ठीक है, उसके फीचर्स बाकी प्रोडक्ट से कैसे डिफरेंट है, आप ऐसी कौन सी स्पेसिफिक चीज प्रोवाइड करें जो बाकी प्रोडक्ट्स नहीं प्रोवाइड करे. ठीक है, कीपिंग ऑल दैट इन व्यू फिर आप अपना डिसीजन बेस करते हैं. ठीक है, आपने एक एप्पल आईफोन देखा, आपको उसका प्रोडक्ट वैसे ही अच्छा लगा देख के, ठीक है, उसके बाद आपने कहा ओ इसके फीचर्स बहुत बेहतर है बाकी सारे प्रोडक्ट से, सो ये मैं इसके फीचर्स भी एक्सेप्ट करता हूँ. उसके बाद उसके पैकेजेस क्या है, फॉर इंस्टेंस वो उसकी प्राइसिंग क्या है, उसकी वो बाकी क्या पैकेजेस ऑफर करे, उसके साथ वो कौन सी और सर्विसेज ऑफर कर रहा है, उसका पैकेज जो है पूरा के वो एक साथ में उसका पोर्टेबल चार्जर प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं, उसके एयरपॉड्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं, और एसेंशियल चीजें वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं. उसके बाद ऑब्वियसली अगर आपको वो पैकेज बाकी पैकेजेस से बेहतर लगता है तभी आप वो चीज परचेज करेंगे. सो इट्स वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड इट इज नॉट ओनली द प्रोडक्ट और सर्विस द कस्टमर इज बाइंग, उसके साथ बहुत ज्यादा और चीजें आती हैं. सो द एंटायर कंबाइंड थिंग वी कॉल इज द वैल्यू द कस्टमर गेन्स फ्रॉम इट. सो आप प्लीज ये चीज अपने माइंड में जरूर रखें व्हेन यू मेकिंग द मार्केटिंग मिक्स
कि इट इज नॉट ओनली द प्रोडक्ट और सर्विस जो आपका कस्टमर खरीद रहा होता है, इट इज द एंटायर वैल्यू योर कस्टमर गेन्स फ्रॉम रिसीविंग द प्रोडक्ट। उसमें सारी चीजें कवर होती हैं, प्रोडक्ट, सर्विस, उसके एक्स्ट्रा फीचर्स, पैकेजेस। अ वेरी एसेंशियल थिंग इज ऑब्वियसली एक प्रोडक्ट ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट में, उसका एक ब्रांड नेम होता है। फॉर इंस्टेंस आप फोन खरीदने जाते हैं, आपके दिमाग में टॉप 2 नाम क्या आते हैं? आईफोन या सैमसंग। व्हाई इज दैट? बिकॉज ऑलरेडी उनका एक ब्रांड नेम क्रिएटेड है, उनकी पोटेंशियल टारगेट मार्केट में उनके दिमाग में एक ऑलरेडी ब्रांड नेम एग्जिस्ट कर रहा है। दैट इज व्हाई पीपल वुड गो फॉर दैट प्रोडक्ट। ओके, वंस यू अंडरस्टूड दैट कि वो पूरी वैल्यू होती है जो कस्टमर ने गेन करनी होती है, देन ओनली यू कैन क्रिएट दैट परसेप्शन इन द माइंड ऑफ योर पोटेंशियल कस्टमर्स। सेकेंड चीज होती है मार्केटिंग मिक्स में द प्लेस और चैनल्स। अब आपने अपना प्रोडक्ट रेडी कर लिया, बट ऑब्वियसली उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको डिफरेंट चैनल्स यूज करने होते हैं। चैनल्स क्या होते हैं? चैनल्स आर द वेज इन विच योर स्टार्टअप डिलीवर्स इट्स प्रोडक्ट और सर्विस टू द कस्टमर्स। आपने प्रोडक्ट बनाया, आप डायरेक्टली उसे जाके इधर रिटेल शॉप में रख देंगे और उसे बेचने लग जाएंगे, बट ऑब्वियसली आप बैठे बैठे तो सेल नहीं हो जाएगा आपका प्रोडक्ट, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने कौन से चैनल्स के थ्रू जाना है, ठीक है? So you need to understand the places in which your product will be available will be influenced by such considerations such as the actual product itself, the target market and the positioning. For instance, अगर आपका एक प्रोडक्ट है वो आपने बिजनेस कस्टमर्स को देना है, ठीक है? सो आप अकॉर्डिंगली खाली बिजनेस कस्टमर्स को टारगेट करेंगे, आप रैंडमली मार्केट कस्टमर्स को टारगेट नहीं कर सकते, बिकॉज उनके लिए तो वो यूज के लिए है ही नहीं वो प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट खाली बिजनेस कस्टमर्स के लिए, आप उसे रिटेल शॉप में जाके रख देंगे, सो नो वन विल परचेज इट, बिकॉज आपकी टारगेट मार्केट है ही नहीं वो। सो ऑल्सो इट्स एसेंशियल कि जब अपने चैनल्स अंडरस्टैंड कर रहे हो, यू नीड टू नो कि आपके टारगेट कस्टमर क्या है, व्हाट योर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज, और आपने कौन सी चैनल्स यूज करके अपनी टारगेट मार्केट तक अपना प्रोडक्ट या सर्विस रीच करना है। सही है? ऑब्वियसली बहुत सारी सर्विसेज भी होती है एंड यू कैन डू दैट थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये हाल ही हम प्रोडक्ट्स की बात करें, सर्विसेज की भी डिफरेंट चैनल्स होते हैं जिस तरह आप मार्केट कर सकते हो उन्हें। जब आप सर्विसेज ऑफर करते हैं, ऑब्वियसली आप फिजिकली तो वो नहीं रख सकते जाके, सो ऑन सोशल मीडिया और थ्रू ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने कौन से मीडियम्स के थ्रू एडवर्टाइज करना है। अगर आपका एक बिजनेस प्रोडक्ट है, आप उसने बिजनेस चैनल्स पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसे बिजनेस चैनल्स पे एडवर्टाइज करेंगे। अगर आपका एक रिटेल या आप सर्विस प्रोवाइड करें जो खाली मार्केटिंग कस्टमर्स के लिए, आप उन्हें मार्केटिंग चैनल्स के थ्रू करेंगे, ठीक है? सो चैनल्स को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जो बिजनेस कस्टमर्स के लिए नहीं है और आप अपने कंपनीज में जाके उन्हें सेल करने लग जाए, तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट कोई देखेगा ही नहीं, बिकॉज दैट इज नॉट योर टारगेट मार्केट, ठीक है? For services, you need to advertise them efficiently and effectively through social media marketing. Social media marketing में आपकी वेबसाइट के थ्रू आप कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पेजेस के थ्रू कर सकते हैं, लिंक्डइन के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद आप कोलैबोरेशंस भी कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, आपका एक प्रोडक्ट है, यू कैन कोलैबोरेट विद अ बिजनेस प्लान जो ऑलरेडी सिमिलर प्रोडक्ट को डील करे, वो आपके थ्रू आप उसे अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है? बट ऑनलाइन चैनल्स आर ओनली फॉर सर्विसेज, ठीक है? प्रोडक्ट्स के लिए आपने फिजिकली जाके अपना प्रोडक्ट प्लेस करना होता है, इधर इन रिटेल स्टोर्स, होलसेलर्स, योर बिजनेस चैनल्स, एक्सेट्रा। So what we've covered is to understand your marketing mix, you need to understand your product or service, ठीक है? उसके बाद प्लेस और चैनल्स, कि आपने अपने प्रोडक्ट को कहाँ पे रखना है टू सेल इट। उसके बाद प्रमोशन। Promotion is basically how you communicate the benefits of your product or service to the customers. Now this is very very important, ठीक है? आपने अपना प्रोडक्ट बना लिया, आपने अपना सर्विस बना ली, आप उसे प्रमोट कैसे करें, ठीक है? चैनल्स भी आपने डिसाइड कर लिया कि आप इस चैनल के थ्रू करेंगे और ऐसे करेंगे। अब आप उसे कम्युनिकेट कैसे करेंगे, आपने डिसाइड ऑलरेडी कर लिया कि उसकी आपके प्रोडक्ट या सर्विस की परसेप्शन क्या है कस्टमर के माइंड में। अब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने उसे कितना एफिशिएंटली प्रमोट करना है, कौन से मीडियम्स यूज करने हैं उसे प्रमोट करने के लिए, ठीक है? ऑब्वियसली जब आप प्रमोशन करते हैं उसमें यू हाईलाइट कि आप कौन से ऐसे बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है? कभी कभी क्या होता है, अपनी डिटेल्स बता देते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ये है, हमारी सर्विस ये है और हम ये चीजें प्रोवाइड करें, बट यू फॉरगेट कि ऐसा कौन सा बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता।
सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप कम्युनिकेट करें अपने बेनिफिट्स एंड व्हाट यू आर डूइंग आउट ऑफ द ब्लू टू योर टारगेटेड कस्टमर्स. अब ऑब्वियसली प्रमोशन इन्वॉल्व्स बोथ पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स एंड नॉन पर्सनल एफर्ट्स. ठीक है, अब पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स क्या हो सकते हैं? पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स होते हैं फॉर इंस्टेंस वर्ड ऑफ माउथ. आपके फ्रेंड्स और फैमिली, आपने एक प्रोडक्ट बनाया, उन्हें आपने उन्हें जाके बता दिया कि हमने प्रोडक्ट बना लिया, आप प्लीज इसे देखिए, इसकी बेनिफिट्स ये हैं, हम ये डिफरेंट कर रहे हैं, सो इट्स वेरी एफिशिएंट, हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप इसे खरीदें. अपने फ्रेंड्स और फैमिली को वर्ड ऑफ माउथ से आप उन्हें कम्युनिकेट कर देती हैं चीजें. उसके बाद होते हैं नॉन पर्सनल एफर्ट्स. नॉन पर्सनल एफर्ट्स क्या होता है? एडवर्टाइजिंग. ठीक है, आप उसे एडवर्टाइज कौन सी जगहों पे कर रहे हैं, उसके सेल्स प्रमोशन क्या है, पब्लिक रिलेशंस क्या है. एडवर्टाइजमेंट्स में बहुत चीजें हो सकती हैं. दिस ऑल्सो डिफर्स अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट और सर्विस दैट यू आर ऑफरिंग. ठीक है, अगर आपका एक ऑनलाइन बेस्ड आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, विच इज सास बेस्ड, ठीक है, ऑनलाइन है, सो आप उसकी ऑनलाइन प्रमोशंस करेंगे रेलेवेंट प्लेटफॉर्म्स पे. फॉर इंस्टेंस एक बिजनेस प्रोडक्ट है आपका, ठीक है, और आप उसे एक रिटेल जगह पे जाकर प्रमोट करने लग जाएं, तो दैट इज आपका कोई आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा उस चीज से, और आपकी जो फाइनेंशियल चीज है, जो आपने अपने पैसे इन्वेस्ट किए, वो सारे वेस्ट हो रहे हैं, बिकॉज आप अपनी सही जगह पे प्रमोशन कर ही नहीं रहे. सो इट्स इन्वॉल्व्स बोथ पर्सनल एफर्ट्स एंड नॉन पर्सनल एफर्ट्स, एंड इट्स वेरी एसेंशियल कि आप अंडरस्टैंड करें आपके जो नॉन पर्सनल एफर्ट्स है वो सही जगह पे एडवर्टाइज हो रहे हैं. ठीक है, उसके अलावा वंस यू एडवर्टाइज देम, आप उसमें सेल्स प्रमोशन भी लगा सकते हैं. आप मार्केट में जाते हैं, आप देखते हैं लिखा होता है बाय वन गेट वन फ्री. ठीक है, तब आप भूल जाते हैं कि उस प्रोडक्ट की एग्जैक्टली प्राइस क्या है, और आपके दिमाग में बस ये चीज आती है हम एक प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसके बाद हमें एक प्रोडक्ट फ्री भी मिल जाएगा, राइट? तो इस तरह के सेल्स प्रमोशन आप लगा सकते हैं फॉर यू टू अंडरस्टैंड और क्रिएट एन इमेज इन द माइंड ऑफ योर पोटेंशियल कस्टमर्स. उसके बाद पब्लिक रिलेशंस, आप अपने पब्लिक रिलेशंस के थ्रू भी एडवर्टाइजमेंट्स कर सकते हैं. मूविंग फर्दर, the best promotional strategies combine personal and non-personal selling to educate the customers. ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप कह दें कि हमने जाके अपने पर्सनल एफर्ट्स तो कर दिए, हमने इतने लोगों को कहा है, हमने सब अपने फ्रेंड्स को भी कहा है, फैमिलीज को भी कहा है, लेकिन हमारे कस्टमर्स एजुकेट ही नहीं हो रहे, क्योंकि ऑब्वियसली आपने नॉन पर्सनल एफर्ट्स तो इंक्लूड ही नहीं किया. सो फॉर बिकॉज आपका एक प्रोडक्ट न्यू है और मार्केट में जा रहा है, सो आपको खुद जाके बताना होता है अपने कस्टमर्स को कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हम बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, in order for you to do a good promotional strategy. What all have we covered now? आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, द चैनल्स, आपने किस तरह उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रमोशन, and last thing is the pricing. Now what is pricing? Pricing is the combination of the product, place and channel which will determine the customer's perception of the product service value. ठीक है, pricing is very important. Obviously the first thing when you do is when you purchase a product or service कि उसकी price क्या है. ठीक है, लेकिन आप ये प्लीज चीज अंडरस्टैंड करें, अगर आपके प्रोडक्ट और सर्विस की वैल्यू इतनी हाई है आपके कस्टमर के दिमाग में, तो प्राइसिंग थोड़ी अगर ज्यादा भी होगी आप परचेज कर लेंगे. फॉर इंस्टेंस हम सेम एग्जांपल लेते हैं दोबारा आईफोन का. ठीक है, अब आईफोन या सैमसंग फोन की प्राइसेस बहुत हाई है कंपेयर टू अदर फोन्स, and people still purchase it. Why is that? ठीक है, because in the mind of the customer उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है, and how they look at the product वो इतनी ज्यादा है कि जो प्राइस है अगर वो ज्यादा भी हो, लोग फिर भी वो चीज परचेज कर लेते हैं, बिकॉज इन द माइंड ऑफ द कस्टमर उस प्रोडक्ट और सर्विस की वैल्यू जो उन्हें मिलेगी आफ्टर द परचेज इज वेरी हाई, सो दे फाइंड कि वो अपने पैसे बहुत एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं. Also, another thing that is determined by the pricing is the perceived value. The perceived value is basically maximum price the customers are willing to pay for the product. ठीक है, ऑब्वियसली अगर आपकी परसीव वैल्यू आपकी प्रोडक्ट और सर्विस की बहुत हाई होगी इन द माइंड, दैट इज एग्जैक्टली माय फर्स्ट पॉइंट, वी कम बैक टू दैट. अगर उस आपके प्रोडक्ट और सर्विस की वैल्यू इतनी हाई है आपके कस्टमर के दिमाग में दैट ही विल बी विलिंग टू पे अ हायर प्राइस फॉर दैट. सो द परसीव्ड वैल्यू इज द मैक्सिमम प्राइस जो आपका कस्टमर पे करने के लिए तैयार होगा फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस दैट यू आर ऑफरिंग. Now you need to understand the difference between the maximum price customers will pay and the actual cost of producing the product is the value that you make for your startup. अब नाउ इट्स वेरी एसेंशियल, मैं बार बार कह रही हूँ, मैंने फर्स्ट स्लाइड से कहना शुरू किया, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप वैल्यू प्रोवाइड क्या कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को. आपकी प्रोडक्ट और सर्विस की वैल्यू इन द माइंड्स ऑफ योर कस्टमर्स शुड बी सो हाई कि वो प्राइस पे करने के लिए तैयार हो जाएं. ठीक है,
वो मैक्सिमम प्राइस पे करेंगे। एंड ऑब्वियसली आपकी एक कॉस्ट भी होती है जिससे आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जो कॉस्ट होती है वो आपकी वैल्यू होती है जो आप स्टार्टअप को मेक कर रहे होते हैं। सो जो उनका डिफरेंस होता है उससे आप प्रॉफिट्स गेन करते हैं, ठीक है। सो आपकी वैल्यू इतनी हाई होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट सर्विस की इन द माइंड ऑफ द कस्टमर्स कि दे आर विलिंग टू पे द मैक्सिमम प्राइस, कि उनको लगे कि आपके प्रोडक्ट वैल्यू, प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू इतनी हाई है कि वो मैक्सिमम प्राइस पे करें, so that you yourself can also gain the maximum effort from it or the maximum benefit from selling your product or service. ठीक है, सो व्हाट ऑल हैव वी कवर्ड सो फार? हमने पूरा एक मार्केटिंग प्रोसेस को अंडरस्टैंड किया, ठीक है। सो मार्केटिंग आप कहते हैं हमने अपने प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग कर देनी है, ठीक है, बट इट इज नॉट दैट इजी, ठीक है। आपको अपना मार्केटिंग प्रोसेस पूरा अंडरस्टैंड करना होता है, ठीक है। मार्केटिंग प्रोसेस हमने पूरा कवर किया, हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। आप पहले करेंगे उसका मार्केटिंग एनालिसिस, ठीक है। मार्केटिंग एनालिसिस आपने क्या कवर किया, उसमें आपके कस्टमर्स कौन है, आप क्या स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका कंपटीशन क्या है मार्केट में, आपके कोलैबोरेटर्स क्या है मार्केट में, आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपके बैरियर्स क्या है। once you cover this you need to create a certain value. आप how do you do that? You create, capture and sustain the value, ठीक है। आप कैसे करते हैं ये चीज, इसके लिए हमने कवर किए हैं 4 चीजें। फर्स्ट, आपने अपने आप को सेगमेंट किया, ठीक है। सेगमेंट करने के बाद अपनी टारगेट मार्केट को आपने सिलेक्ट किया। टारगेट मार्केट को सिलेक्ट करने के बाद आपने अपने प्रोडक्ट और सर्विस को इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर पोजीशन कर दिया, ठीक है। जब अपने प्रोडक्ट सर्विस को आपने पोजीशन कर दिया, इससे आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। इट्स वेरी एसेंशियल कि आप अंडरस्टैंड करें वैल्यू का पर्पस क्या है। वैल्यू वो खाली आपकी प्रोडक्ट सर्विस नहीं होती, वैल्यू वो सारी चीजें होती हैं जो आपके पोटेंशियल कस्टमर के माइंड में आपकी प्रोडक्ट और सर्विस को लेकर होती हैं, ठीक है। मार्केटिंग प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसकी वैल्यू को अंडरस्टैंड करें, आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। सेगमेंट कर लिया आपने अपनी मार्केट को, टारगेट मार्केट भी आपने चूज कर लिया, आपने पोजीशन भी कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने मार्केटिंग मिक्स को कवर किया। मार्केटिंग मिक्स में आपने प्रोडक्ट का सर्विस कर लिया, आपने चैनल्स डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, आपने प्रमोट कर लिया। इन तीनों चीजों को कवर करके आपने अपनी प्राइस बना ली, ठीक है। इससे एक वैल्यू सेट हो गई आपके कस्टमर्स के दिमाग में। नाउ व्हाट हैपेंस इज इट्स वेरी इजी, ठीक है। आप कह देते हो हमने वैल्यू क्रिएट कर ली, हमें फर्स्ट हमारे 100 कस्टमर्स मिल गए, हमने अपना प्रोडक्ट सेट कर दिया। अब उससे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आपने कस्टमर्स को एक्वायर कर लिए, अब आपने उन कस्टमर्स को रिटेन करना है, ठीक है। सो आपने प्रोडक्ट को जैसे वैल्यू करोगे या अपनी टारगेट मार्केट के दिमाग में उसकी पोजीशन करोगे, उस पर आप कस्टमर्स को रिटेन भी करोगे। व्हाट इज कस्टमर रिटेंशन? कस्टमर रिटेंशन इज कि अपने कस्टमर्स को आपने एक परचेज के बाद वापस रिटेन कर लिए। यू फॉर इंस्टेंस आपने एक प्रोडक्ट खरीदा जाके, ठीक है। अब अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो जो आपका कस्टमर है वो बार बार आके प्रोडक्ट खरीदे, ये नहीं कि वो एक दफा उससे प्रोडक्ट खरीद लिए तो नेक्स्ट टाइम उसने खरीदना ही नहीं है। सो कीपिंग ऑल दैट एट व्यू, यू हैव टू क्रिएट सच ए वैल्यू इन देयर माइंड, और आपका प्रोडक्ट और सर्विस इतना अच्छा होना चाहिए कि आप अपने कस्टमर्स को मूविंग फर्दर भी रिटेन कर सके। इनिशियली एक्वायर तो आपने कर लिया, बट व्हाट इफ उसको उसका प्रोडक्ट और सर्विस पसंद ही नहीं आई, ठीक है, उनके दिमाग में उतनी परसेप्शन ही नहीं, उतनी वैल्यू ही नहीं ऐड हुई, तो आप उसे रिटेन नहीं कर सकेंगे उस कस्टमर को। So that is, in order to understand the entire marketing process, you need to create, capture and sustain the value to in order to retain your customers. Profits कैसे बनते हैं? Profits obviously सिर्फ उन्हीं बेसिस पे जाके बनेंगे अगर आपने कस्टमर्स को रिटेन कर सकेंगे। फॉर इंस्टेंस हम दोबारा आईफोन पे आते हैं, ठीक है। एक इंसान है, उसने आईफोन खरीद लिया। अब उस इंसान के दिमाग में आईफोन की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि वो बार बार जाके हर साल नया आईफोन खरीदते हैं। Why is that? Because they have created this perception in the mind of the customers and they've created this value in the mind of the customers कि वो लोग बार बार जाके उनका प्रोडक्ट खरीदते हैं। सो मार्केटिंग प्रोसेस इज नॉट ओनली अबाउट कि आपने फेसबुक पे मार्केट कर दिया, बिलबोर्ड लगा दिया, एक वीडियो बना दी, ठीक है। इट इज नॉट दैट इजी। कहने में बहुत आसान होता है, बट व्हेन यू एक्चुअली कम टू डू इट, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। और आपको ये सारी चीजें वन बाय वन अंडरस्टैंड करनी होती हैं in order to capture the entire market, in order to make that perception in the mind of your customers about your product or service, ठीक है।
With that, we end our session for today on marketing. If you have any questions, आप please chat में मुझसे पूछ सकते हैं. उसके अलावा your assignment related to today's session will be uploaded on Google Classroom. उसके अलावा भी अगर सेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हैं. Once the assignment is uploaded, आप उससे अटेम्प्ट करें. Assignment will revolve around the marketing process, what and how you're creating your marketing process, और उसके बाद हम उसे डिस्कस भी कर लेंगे. Thank you everybody for joining us today, and Khuda Hafiz.